सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे देश में कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। इसके लिए जहां हमारे किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत है, वहीं कृषि वैज्ञानिकों का सराहनीय प्रयास है। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी किसान हितकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने में बहुत सी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं कुशल नेतृत्व हेतु किस तरह से कार्य कर रही हैं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों 8वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2015 का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक रिपोर्ट। भारत में ग्रामीण समृद्धि, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में व्यापारिक अवसरों को तलाशने के लिए व्यापक सोच जरूरी है। इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा 8वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2015 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सतत कृषि। सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर नीति निर्धारक, कृषि वैज्ञानिक और दूर दराज से आए अनेक प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। इस सम्मेलन की राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि कृषि में आ रही चुनौतियों का सामना करना होगा, जिससे खेती लाभकारी बने। For sustainable or unsustainable agriculture, the attention to soil, the attention to water, the attention to biodiversity and seeds, and of course the whole area of climate change, preparation of anticipatory action for climate change. I am happy again our present government has done two things. One is added climate change to the portfolio of Mr. Javadekar. That means Ministry of Environment and Forest. It's the correct way of looking at the climate, and we have enormous opportunities here to look at the climate adaptation and mitigation of climate change. Biodiversity, our country is a mega biodiversity area. There is National Biodiversity Board, but it's important, again, conservation of biodiversity becomes everybody's business, not only government's business, because that's the source of all breeding, whether breeding work, biotechnology work, biodiversity is the basis. एग्रीकल्चर टुडे द्वारा प्रकाशित एग्रीकल्चर ईयर बुक 2015 का विमोचन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि हमारी मूल संस्कृति है और इसके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। The Prime Minister want to transform India. That's why he created this NITI, NITI, National Institute for Transformation of India. In the transformation, the focus should be more and more on agriculture. As I told you, it's our basic culture. Friends, we need to have reforms in every sector. We need to increase production. Simultaneously, we need to have inclusive growth. Center and states must work together. That's why the Prime Minister gave a call for Team India. All parties should join hands to see the necessary legislative measures are approved, steps are taken in right direction rather than politicking. We need to replace the politics of poverty with the politics of development. कृषि सचिव श्री सिराज हुसैन का मानना है कि खाद के संतुलित प्रयोग से ही कृषि में विकास संभव है। Not only the major nutrients, but also we would like the minor nutrients used to be more balanced. Honorable Minister made a mention of water. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is going to have a provision of about 50,000 crores over the next 5 years. We have already brought some convergence to schemes operated by various ministries. From the Ministry of Agriculture, we have provided funds in Punjab and Haryana, for example, for the dark blocks, overexploited blocks. In fact, when we discuss water situation, we think that everything is fine in Punjab and Haryana. But we realize that
even in these two states, the water situation is extremely disturbing in some blocks. And unless this issue is addressed on an urgent basis, we will have a critical situation, and it may be extremely difficult to continue to grow rice in so many blocks which are overexploited. Therefore, from the Ministry of Agriculture, we have provided funds to the Department of Rural Development for recharge of water in these blocks. I hope the state governments will make good use of it. इस अवसर पर कृषि मंत्री हरियाणा सरकार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो चैलेंजेज हैं उनकी चर्चा हुई है, लेकिन कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा गहरे हैं, फिजिकल चैलेंजेस से। मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर के लिए हमारा हार्डवेयर तो भारत का बहुत अच्छा है, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छी ज़मीनें हमको दी हैं, हिमालय जैसा पर्वत दिया है, बहुत अच्छी बारिश दी है, तरह तरह के क्लाइमेट दिए हैं और सब तरह की क्रॉप्स जो है हम यहाँ पर उगा सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट हमको करना चाहिए, जितना अच्छा क्रॉप मार्केट मैनेजमेंट हमको करना चाहिए, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मैनेज करना चाहिए, उस सब में हम कहीं ना कहीं पीछे रहे। और उससे भी जो बड़ी बात है, मुझे लगता है कि सोसाइटी, सरकार और बाज़ार, इन तीनों की भूमिका जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वो तीनों में अभी और बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थाओं को कृषि नेतृत्व पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। डॉक्टर नारायण चावड़ा को फार्मिंग लीडरशिप पुरस्कार, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स को एक्सटेंशन लीडरशिप, डॉक्टर नीरू भूषण को यंत्र साइंटिस्ट अवार्ड, डॉक्टर गुरिंदर रंधावा को विमेन लीडरशिप पुरस्कार, असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.एम. बेजबरुआ को रिसर्च लीडरशिप, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को एकेडमिक लीडरशिप, भारत एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को डेवलपमेंट लीडरशिप, नीफटैम को एंटरप्रेन्योर लीडरशिप, एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन चेन्नई को लाइवलीहुड लीडरशिप, अडानी एग्रोफ्रेश लिमिटेड अहमदाबाद को एग्री बिजनेस लीडरशिप, जुआरी एग्रोकेमिकल्स को CSR लीडरशिप, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव को इंडस्ट्री लीडरशिप, अमूल आनंद को कॉरपोरेट लीडरशिप, पंजाब नेशनल बैंक को बैंकिंग लीडरशिप, कृषि विभाग तमिलनाडु को प्रोग्राम लीडरशिप, पशुपालन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पॉलिसी लीडरशिप, कर्नाटक राज्य को स्टेट हॉर्टिकल्चर लीडरशिप, छत्तीसगढ़ राज्य को स्टेट लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर S. आयप्पन, डायरेक्टर जनरल ICAR को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। इसके अलावा UPL ग्रुप के अध्यक्ष राजू D. श्रॉफ को स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट, भारत में नीदरलैंड के राजदूत श्री एल्फोंसस स्टोइलिंगा को इंटरनेशनल लीडरशिप और पॉलिसी लीडरशिप के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया। 21वीं शताब्दी अगर भारतवर्ष की होनी है तो मुझे एक बात की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना है कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, बाद में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें एक बात और जोड़ दी, जय जवान और जय किसान के साथ जय विज्ञान। आज जवान, किसान और विज्ञान, ये तीनों के तीनों ऐसे मापदंड हैं, ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पर ही भारतवर्ष 21वीं शताब्दी में जगत सिरमौर बन सकता है। इस मौके पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि का विकास और किसानों की प्रगति। आयोजक संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए माननीय गृह मंत्री ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का दौर चल रहा था तो उस समय
भारत दुनिया की अन्य देशों की अपेक्षा जो कम प्रभावित हुआ था, उसमें अन्य कारणों के साथ साथ एक सबसे बड़ा कारण यह था, एक रूरल डिमांड यह भारत की थी, जिसके कारण भारत बहुत अधिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से प्रभावित नहीं हो पाया था। बहुत बड़ा कारण था। यह कभी कभी यह भी चिंता व्यक्त की जाती है कि यह एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और हमारे जैसे व्यक्ति को भी कभी कभी चिंता होती है। लेकिन आप सबको देखने के बाद और आप सबके कंट्रीब्यूशन को जानने और समझने के बाद मैं कह सकता हूं कि भारत में कृषि को, एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाया जा सकता है। मेरा विश्वास यह पक्का हुआ है। और आज जिस इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्चिंग हुई है, मैं इसके लिए डॉक्टर एमजे खान को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से डॉक्टर एमजे खान अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि ये एक नौजवान सचमुच यह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करिश्माई व्यक्ति है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी डॉक्टर एमजे खान को मैं मानता हूं। एग्रीकल्चर टुडे के मुख्य संपादक डॉक्टर एमजे खान ने सम्मेलन के बारे में बताया। To be part of the Agriculture Leadership Award function and of course the launch of Indian Council of Food and Agriculture, ये कंसेप्ट जो थी सर 14 साल पहले, उस टाइम पे पावर मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी होते थे, वो हमको लेके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के पास गए थे एंड डिस्कशन में ये आया कि जैसे फिक्की है, CII है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी क्रिएटेड जो पूरे फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का एक जो पोटेंशियल है उसको अनलीज करे, पूरी दुनिया में पोजीशन करे और सारे स्टेक होल्डर्स के, पर्टिकुलरली द फार्मर्स हैं, उनकी आवाज़ को नेशनल लेवल पे टेकअप करे। तो उस पे डिस्कशन पे होता रहा। आई वॉज स्टडिंग द ग्लोबल मॉडल्स कि कहाँ बाकी देशों में कैसे है। 2006 व्हेन आई लेड ए डेलीगेशन टू चाइना, चाइनीज चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, उनके साथ डेलीगेशन लेवल वी हैड टॉक्स। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए 32 member delegation. So the president asked which is our counterpart in India. I told him there is none, but soon we will have one. But soon has taken some 9 years time from that time, and of course in all about 14 years time. But I'm happy finally this launch has been done by the Honorable Union Home Minister, जिनका दिल दिमाग किसानों के लिए हर वक्त रहता है। और जितना फार्मर्स बड़ी तादाद में बैठे हैं, राकेश टिकैत जी बैठे हैं, कृष्णवीर चौधरी जी बैठे हैं, महाराष्ट्र से वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और हिस्से से जो किसान नेता भी बैठे हुए हैं, इनकी तमाम चर्चा राजनाथ जी करते रहते हैं। किसी भी विभाग का, मंत्रालय का चार्ज आपके पास क्यों न हो, लेकिन जो किसान से आपका लगाव है वो जग जाहिर है। और आपके हाथों सर इतने बड़े एक शुरुआत हुई है, बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी साहब, ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा, जब भी कृषि की बात होती है, सुबह कृषि मंत्री हरियाणा थे जब वेंकैया नायडू जी उद्घाटन कर रहे थे यहाँ पे एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट का आज सुबह, तो सब लोगों का एक ये रहता है कि हरियाणा की शुरुआत कैसे हो, क्योंकि शुरुआत जो हरियाणा के जो ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बड़ा रोल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का। आप सब दोनों बड़े राज्यों को जो कृषि प्रमुख राज्य हैं उनके ऑनरेबल गवर्नर हैं, आपकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2015 का आयोजन और भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की शुरुआत इस आशा और विश्वास का प्रतीक है जो भविष्य में ऐसी नीति बनाने में सफल होगा जिससे हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।